Good morning, everyone. Students, today we are going to start the revision from the chapter mensuration. Everyone, please open page number 184. 11.1 and 11.2 is not in your syllabus. Okay. Again, I am telling you 11.1 and 11.2 is not in your syllabus, and final term syllabus will also be sent to you in the group today only. ठीक है, जो दूसरे चैप्टर्स आने हैं. पेज 184 निकालिए. We have to discuss first the surface area of. We have the three figures cube, cuboid and cylinder बेटा, जिसका हमने क्या करना है, surface area and volume. So let us revise the formulas first before taking the questions. You have to learn the formulas by heart. Sometimes in the exam, the question which comes, that question is very, very, very easy, but still your question gets wrong only because you people don't learn the formulas. तो फॉर्मूलाज को जैसे आप अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की अच्छे से रट्टा लगाते हो ना, वैसे ही इन फॉर्मूलाज का रट्टा लगा लो जैसे मर्जी. ठीक है. एंड देयर आर ओनली 3 फिगर्स. व्हेन यू विल गो टू 9th क्लास बेटा, देयर आर 6-7 3D फिगर्स जिसके आपने फॉर्मूलाज इसी के सरफेस एरिया और वॉल्यूम के लर्न करने हैं. 3 के अभी अच्छे से रट्टे लगे होंगे, बाकी होंगे बाद में सीख लेंगे. ठीक है. क्यूब, cuboid and cylinder. Then we have curved surface area. CSA means curved surface area, or LSA. LSA means lateral surface area. LSL means lateral. C means curved. It is one and the same thing, right? If you have a cube, ठीक है, और a cuboid, lateral और curved surface area means, जैसे ये book है, ये book cuboidal है. I have told you before also. Lateral means ये side वाला, ये portion, ये portion, ये portion. ऊपर वाला छोड़ देना, नीचे वाला छोड़ देना. Lateral means the side portion. जैसे ये चौक है, it is cylindrical. So the lateral surface area is this side one. ना top छोड़ देना है, bottom छोड़ देना है. ठीक है. Then we have total surface area. Now what is total surface area? Total surface area में सब आ जाता है, साइड वाला भी, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी. Total surface area include everything. Then next we have the volume. Yes beta, volume means the capacity of the figure. क्यूब है, क्यूब मतलब एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उसमें हम कितनी चीज डाल सकते हैं. क्यूबॉइडल बॉक्स में हम कितनी चीज डाल सकते हैं, सिलेंड्रिकल कंटेनर में हम कितना फिल कर सकते हैं उसको, दैट इज अबाउट इट्स वॉल्यूम. फॉर्मूलाज क्या है नाउ? क्यूब के 4a square curved, 6a square total, and volume is a क्यूब. कर्व्ड मतलब साइड वाला कम पोर्शन, तो उसमें छोटा नंबर आएगा. 4a स्क्वायर. टोटल मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला सब मिला लेना है. तो 4 और 6 में कंफ्यूजन होती है बच्चे. टोटल सरफेस एरिया में 6 लिख देते हैं, सॉरी 4 लिख देते हैं, बट इस तरह से याद रखो कि एक 4 है, एक 6. तो बड़ा नंबर a स्क्वायर के साथ लगेगा जिसमें टोटल सरफेस एरिया है. और क्यूब में, वॉल्यूम में 3 चीजें होती हैं, मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट. As in cube, all the 3 things are same, so the volume is a cube. Then cuboid, curved surface area is 2 into L plus B into H, and this is also the formula for area of 4 walls. अगर लिखा हो लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है, हाइट गिवन है, find the area of 4 walls, then the area of 4 walls is, that is the curved surface area of the figure.
the cuboid. Then total surface area is 2 into LB plus BH plus HL. 2 into LB plus BH plus HL. Then volume is very easy, LBH. Table सारा आपने बनाया हुआ है, no need to make it again. If anyone has not made, then you can make it. Then beta cylinder, curved surface area is 2 pi RH, where R is the radius of the cylinder and H is the height. Total surface area is 2 pi R, फिर ब्रैकेट में R plus H. 2 pi R बाहर, ब्रैकेट में R plus H. And then volume is pi R square H. So you need to learn the formulas by heart. रट्टे लगा लो इस formulas के, जैसे मर्जी लर्न करो, फिर लिखो बिना देखे, थोड़ी देर रुक के, जैसे मान लो आपने लर्न कर लिए, then do some other work. ठीक है, क्वेश्चंस कर लिए, सपोज आपने फॉर्मूलाज देखे, 2-4 क्वेश्चंस कर लिए, जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो हमारे फॉर्मूलाज माइंड में फिट हो जाते हैं. देन यू डू एनी अदर सब्जेक्ट और व्हाटएवर, आफ्टर सम टाइम अगेन राइट डाउन द फॉर्मूलाज. सोचो आपको याद है, देन चेक इट. ठीक है, फिर 3-4 दिन बाद जब आप पढ़ते हो, कुछ करते हो, तो फिर दोबारा से अच्छा चलो मैं आज मेंस्ट्रुएशन के फॉर्मूलाज लिखता हूँ, है ना, तो आप फिर वो फॉर्मूलाज लिखो एंड देन गेट इट चेक. एक बार आप मतलब 1-2 बार लिखोगे, सही होंगे, देन यू विल नेवर फॉरगेट द फॉर्मूलाज इन योर लाइफ. Okay, now let us do the questions. और जैसा बोलते हैं ना बेटा हम वैसे किया करो. ठीक है, कि हाँ जैसे अब आपको समझाया है कि लिखो, तो ये नहीं कि मैडम ने बोल दिया चलो ठीक है हमने कौन सा करना है, नहीं करोगे आपका लॉस होगा. फिर जैसे जैसे आपको सिखाया जाता है, we are having more experience than you, that's why we tell you how to practice. So you follow that way if you want benefit. बाकी आपकी मर्जी है. चलिए सबसे पहले बेटा we will start revising the examples. Come to the example number 4 on page number 184. An aquarium is in the form of a cuboid whose external measures are this. The base, side faces and back face are to be covered with the colored paper. Find the area of the paper needed. The base, the side face and the back face is to be covered. Base, side faces and back face. इधर देखिए बेटा, दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन. ऐसा क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में नहीं है. दिस इज अ क्यूबॉइड, ये L है, ये ब्रेथ, ये हाइट. ठीक है, अब हमने एक्सटर्नल मेजरमेंट्स गिवन है. एक्सटर्नल मेजरमेंट मींस L80, ब्रेथ 30 सेंटीमीटर एंड हाइट 40 सेंटीमीटर. अब हमने पेपर लगाना है, कलर्ड पेपर. कहाँ कहाँ लगाना है? बेस पे, मतलब सिर्फ इस बेस पे, इस बेस के फेस, इस बेस के फेस पे. समझ गए? जैसे मान लो ये मेरी बुक है, तो मैंने बुक के ये बेस पे लगाना है. बेस है ये मेरा, ये क्यूबॉइड यू कैन सी. ठीक है, तो यहां से देखिए बेस में क्या आ रहा है, बेस का फेस रेक्टेंगुलर क्यूबॉइडल है, तो इसका फेस कैसा हुआ? रेक्टेंगुलर. तो मींस एक LB एंड देन इट इज रिटन साइड फेसेस. साइड फेसेस कौन से हैं? ये वाले, ये पीछे वाला नहीं कवर करने को बोला, साइड वाले फेसेस कवर करने हैं. साइड वाले फेसेस बेटा जो है उसमें क्या आ रहा है आप देखो, ब्रेड्थ और हाइट. इसी तरह से अगर ये ब्रेड्थ है तो ये ब्रेड्थ है और ये क्या है? हाइट. ये वाला फेस. तो इसमें क्या आ रहा है? अगेन
breadth and height. I hope you all are understanding. Side faces, side face नहीं लिखा, अंडरलाइन कर लो. Side faces इसका मतलब एक उधर वाला BH, एक इधर वाला BH, ठीक है. And what is written? Back face. Back face मतलब पीछे से. Back face में क्या आ रहा है? ये एक लेंथ है और ये क्या आ रही है? हाइट. If you are understanding, पीछे वाला फेस. अब शेड किया है, आपको समझ आ गया होगा. ये लेंथ है और ये हाइट है. सो हमने कौन कौन से एरिया पे कलर पेपर लगाना है? LB पे BH प्लस BH मतलब 2BH and LH, right? This is the required. We have to find how much paper is required. So required area is this 80 into 30 plus 2 into 30 into 40 plus 80 into 40. Whatever will be their answer, that whatever you will get, that will be your answer. So answer I don't want as it is solved in your book. I hope it is clear to everyone. टोटल में से टोटल ले लो, पूरा टोटल फाइंड करो, उसमें से फ्रंट वाला माइनस करो, ठीक है, और ये टॉप वाला माइनस करो. वो ज्यादा डिफिकल्ट है, पहले पूरा निकालोगे. ये इजी है, इसमें आपने सिर्फ वो लिया जो आपको रिक्वायर्ड है. So write down important. This is different and important question. Now come to the next example number 5. The internal measures of the cuboidal room are this. Find the total cost of whitewashing all 4 walls of the room. If the cost of whitewashing is ₹5 per meter square. What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? Okay. पहले हमने ये बताना है, 2 कॉस्ट निकालनी है बेटा इसमें. एक हमने कॉस्ट निकालनी है 4 वॉल्स को व्हाइट वॉश करने की, ठीक है. फिर वो कहते हैं कि अगर सीलिंग को भी करना हो, सीलिंग मींस छत को भी हमने व्हाइट वॉश करना हो, देन व्हाट विल बी दी कॉस्ट. सो अगेन दिस इज वेरी इजी. इंटरनल मेजर्स ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम. इंटरनल मेजर मतलब जो रूम के अंदर वाली मेजरमेंट है वो आपको गिवन है, ठीक है. क्या है? 12, 8 and 4. कॉस्ट इज गिवन टू यू इन मीटर स्क्वायर. तो यूनिट्स भी हमारे मीटर में ही है. जैसे मान लो अगर कॉस्ट मीटर में गिवन होती और जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में, तो हमें अपनी डायमेंशंस को मीटर में चेंज करना पड़ता, बट अभी जरूरत नहीं है. 12, 8, 4. L is 12 meter, 8 meter. Now, first of all, what we have to whitewash? 4 walls. ये हमारा रूम जो है वो क्यूबॉइडल है. अभी मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था. क्यूबॉइड की चारों दीवारें मतलब उसका कर्व्ड सरफेस एरिया. और डायरेक्टली ऑल्सो वी कैन राइट एरिया ऑफ 4 वॉल्स. क्या होता है? दैट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड 2 into L plus BH. 12 plus 8, 20 into 4, 80 into 2, 160 meter square. This is the area of 4 walls. Then cost of whitewashing 4 walls, 160 into 5. 1 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने के लिए ₹5. जितना हमारा एरिया है उसको व्हाइट वॉश करने के लिए ₹800. ये अभी हमारा आधा क्वेश्चन हुआ है. हमने क्या फाइंड आउट किया? व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग दी 4 वॉल्स. नाउ देयर व्हाट दे आर सेइंग,
What will be the cost of whitewashing the ceiling? What will be the cost of whitewashing if the ceiling of the room is also whitewashed? अब हमने नेक्स्ट पार्ट में बेटा क्या फाइंड आउट करना है? टोटल कॉस्ट, ना कि सिर्फ सीलिंग की। आंसर एंड में जो आंसर देना है वो क्या देना है कि 4 दीवारों को अगर हमने करना है व्हाइट वॉश तो 800 लगे। नाउ एरिया ऑफ सीलिंग, सीलिंग क्यूबॉइडल रूम है, छत कैसी हो गई? रेक्टेंगुलर, L इंटू बी, हाइट तो नहीं आएगी ना ऊपर वाली छत में, L इंटू बी दैट इज 12 इंटू 8 96 मीटर स्क्वायर। हमारे छत कितनी है? 96 मीटर। और कॉस्ट कितनी है? 1 मीटर स्क्वायर को 5 रुपए, 96 5 6 30 480। एंड में आप आंसर क्या दोगे? टोटल कॉस्ट, दैट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इज 800, cost of whitewashing the ceiling is 480, so the total cost will be 800 plus 480, that is rupees 1280. I hope it is clear. हाँ जी, वाइट 4 वॉल्स की अलग से निकालनी है, फिर सीलिंग की निकालनी है, फिर टोटल करना है। ओके ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 6 करेंगे बेटा। इन अ बिल्डिंग देयर आर 24 cylindrical pillars. The radius of each pillar is 28 centimeter and height is 4 meter. अंडरलाइन करो, इसमें देखो डायमेंशंस डिफरेंट हैं। Find the total cost of painting the curved surface area of all pillars at the rate of rupees 8 per meter square. Now the cost is given to you per meter square and radius is given to you in centimeter. रेडियस बेटा आपके पास है 28 सेंटीमीटर, हाइट है 4 मीटर। पूरा क्वेश्चन रीड करना है आपको। यहां से समझ आ गया है कि आपने जो बिल्डिंग के पिलर्स होते हैं, पिलर्स जो एवरीवन ऑफ यू हैव सीन, जो पिलर्स होते हैं बेटा उनको अगर हमने क्या करना है? पेंट करना है। तो जो पिलर्स को पेंट करते हैं, पिलर क्या होता है? जो दीवार और बेस के साथ किसको उसको सपोर्ट मिलता है। तो जब हमने उनको पेंट करना है, देन विच एरिया इज टू बी पेंटेड? सिर्फ कर्व्ड, ऊपर तो दीवार के साथ, छत के साथ है, नीचे जमीन के साथ है। सो विच इज द एरिया टू बी पेंटेड? कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज 2 पाई आर एच। एरिया टू बी पेंटेड, एक पिलर को पेंट करने के लिए 2 पाई आर एच। कितने पिलर्स हैं? 24। 24 को करने के लिए we will multiply it with 24. Now आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, आपको दिखा है कि कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए पहले एरिया निकालेंगे। कॉस्ट मीटर में गिवन है तो हम अपने रेडियस को मीटर में चेंज करेंगे, दैट इज 2.8 मीटर, राइट। देन रिक्वायर्ड एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 पिलर इंटू 24, क्योंकि हमारे टोटल कितने पिलर्स हैं? 24। सो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.8 इंटू 4। पहले एक का निकाल के बाद में भी 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, इट इज योर विश। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, 7 4 28, देन 44 इंटू 16 इंटू 24/10। कटिंग मत करना क्योंकि जो भी न्यूमरेटर आएगा एंड में डेसिमल लग जाएगा। सो इट इज 168.96 मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट? कॉस्ट क्या है? 8 पर मीटर स्क्वायर। इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग ऑल द 24 पिलर्स, राइट। चलिए एग्जांपल नंबर 7 करेंगे।
Find the height of the cylinder whose radius is 7 centimeter and total surface area. करो ये. Radius, don't look in the book. Radius is 7 centimeter and total surface area of cylinder is 968 centimeter square. Everyone, nobody will look in the book. Try to solve the question yourself, and then I will solve, and then you will match your answer. Now see. Yes, Bani. मैम आंसर की हैंड रेस किया था. Answer is 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर. ओके. देखिए बेटा, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ही नहीं याद होगा, then easy question also you will not be able to do, right? And if you thinking that you will get help from anywhere, you know it is not possible, right? So the total surface area of cylinder is 2 pi r into r plus h is equal to 968. 2 into 22 by 7, radius is 7, height we have to find is equal to 968. This 7 will get cancelled with 7, क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है. ये वाले 7 इसको नहीं काट सकते हो आप, क्योंकि ये 7 इसके साथ ऐड हो रहा है. सो 44 into 7 plus h is 968. Either you open the brackets, कर लेते हैं. 7 4 28, 2 7 4 28, 308 plus 44h is equal to 968. 44h is 308 उधर जाके माइनस होगा 660. h is 660 by 44. 11 6s are 11 4s are 4 1s are. So h is equal to 15 सेंटीमीटर. एक फॉर्मूला याद रखना है, बाकी सारा कैलकुलेशंस का वर्क था. So this was all about the examples of exercise 11.3 beta. Now let us discuss the questions. Questions we have done in detail, but again we will revise. And most probably जो mensuration के questions आते हैं बेटा वो book में से ही आते हैं, ठीक है. थोड़ा बहुत figure change हो जाता है, otherwise the questions are same. And full chapter is not there in your syllabus, only 2 exercise, right? और scoring होता है बहुत ज्यादा ये.
So first question, everyone please look into the book. Two cuboidal boxes are given. Which box has the lesser amount of material to make? अब आपने फॉर्मूलाज लर्न कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन सारे कर लिए, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात होती है कि क्वेश्चन को पढ़कर आपने ये डिसाइड करना है दैट व्हाट इज टू बी फाउंड, एरिया और वॉल्यूम। यहाँ तो बेटा हमें पता है वी आर डूइंग 11.3 एंड इन दिस 11.3 वी आर टॉकिंग अबाउट द सरफेस एरिया ओनली, either it is curved or total, but in the exam you have to understand the question. जैसे इसमें आप क्या बोल रहे हैं, which box has lesser amount of material to make, किस बॉक्स को बनाने के लिए कम मटेरियल चाहिए। तो अगर हमने किसी बॉक्स को बनाना है उसके लिए हमें मटेरियल चाहिए, कोई कार्डबोर्ड या कुछ भी है ना, तो इसका मतलब हम उस किस चीज की बात कर रहे हैं, ऐसे ओपन शीट है उसको फोल्ड करके क्यूब बनाना है या क्यूबॉइड बनाना है, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हियर अबाउट देयर एरिया। सो वन इज क्यूब एंड वन इज क्यूबॉइड, फिगर इज गिवन टू यू। सो अब यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा कि बॉक्स ओपन है ऊपर से नीचे से, कुछ नहीं लिखा, सिर्फ लिखा है बॉक्स। अगर सिर्फ बॉक्स लिखा है तो इस यू विल बी कंसिडरिंग इट एज द क्लोज्ड बॉक्स। सो total surface area of cuboid you will find, and हम बेटा डिस्कस करेंगे, सॉल्व वगैरह हमने सब कुछ किया हुआ है, वी आर जस्ट डिस्कसिंग इट ताकि आप रिकॉल कर सको सारे क्वेश्चंस को। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड यू नो इट इज 2 into LB plus BH plus HL। साथ में अपने माइंड में फॉर्मूलाज बोला करो। यस अनवे। गुड मॉर्निंग मैम। मैम जैसे ये सम है, इसमें हम वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हैं जैसे, अरे क्यों, क्योंकि उन्होंने ये नहीं पता कि बॉक्स अंदर से खाली है या फिर भरा हुआ है मटेरियल से। अरे विच बॉक्स, आपने बॉक्स को बनाना है, मटेरियल टू मेक, उसके उससे वॉल्यूम से हमें क्या लेना देना है, कितना वॉल्यूम। एक बॉक्स बनाना है तुमने जिसकी लेंथ इतनी, ऐसा बॉक्स बनाना है मान लो, तो उसके लिए मटेरियल कितना चाहिए, उसमें कितनी चीज आ सकती है, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। बाहर वाला आउटर सरफेस एरिया कितना है वो निकालना है, वॉल्यूम नहीं। मटेरियल चाहिए जैसे ऐसे बोलो कि बेटा लकड़ी की बोली है, हाँ उससे उसको मतलब कि काटा है बॉक्स को, तो उसके अंदर भी तो मटेरियल होएगा। मटेरियल आएगा, बट वो अलग बात है, वो होता है कि उस बॉक्स में कितनी चीज आ सकती है, ठीक है। अब अगर हमने जैसे ये बॉक्स बनाना है, कई बार क्या है कि डायमेंशन सेम है, कोई बॉक्स ऐसा बनता है, ठीक है, कोई बड़ा छोटा है जिसकी हाइट डिफरेंट है, ठीक है, मान ले दोनों का वॉल्यूम सेम आ सकता है लेकिन दोनों का एरिया क्या है, डिफरेंट, एरिया डिफरेंट है, उस वो थोड़ा बड़ा है, इसकी हाइट ज्यादा है, उसकी हाइट कम है सपोज, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिफर, वॉल्यूम भी डिफर हो जाएगा और एरिया भी। तो अगर आपने किसी बॉक्स को बनाना है, किसी बॉक्स को अगर आपने बनाना है तो उसके लिए आपको उसका एरिया ही निकालना पड़ेगा, उसके वॉल्यूम से आंसर नहीं आएगा। आप फाइंड आउट करके देख लो, यू विल नॉट गेट द आंसर, करेक्ट आंसर यू विल नॉट गेट। Which box requires a lesser amount of material? क्योंकि बेटा जब आपने किसी बॉक्स को बनाना होता है, जिस भी चीज से बनाना है, लकड़ी का बनाना है, स्टील का बनाना है, आयरन का, कार्डबोर्ड का, तो उसके लिए हमें कार्डबोर्ड चाहिए सपोज, तो वो कितना कार्डबोर्ड चाहिए, तो जितना वो भर सकता है उससे नहीं पता चलेगा उसकी लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है और हाइट कितनी है। तो वो पूरा डिब्बा हमें जो बनाना है उसके लिए हमें उसका क्या चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, ना कि वॉल्यूम। वॉल्यूम तब निकालेंगे अगर बोल सकते हैं कि एक क्यूबॉइड है और एक क्यूब, दोनों में से किसमें ज्यादा चीज आ सकती है, ठीक है, तो वॉल्यूम। अगर बॉक्स बनाना है तो एरिया, वो आपकी बात जैसे वो एक जनरल बात है समझने के लिए कि हम निकाल लेते हैं कि किस बॉक्स में कितनी चीज आएगी, ठीक है, उससे हम बता सकते हैं कि उससे ये नहीं पता चलेगा कि कितना मटेरियल चाहिए उस बॉक्स को बनाने के लिए, उसे ये पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। सो यस मैम, फाइन।
So this is the total surface area of cuboid and this is the total surface area of cube. ये आपको given है 50, LBH is given to you. You can find and then at last you have to tell what is which box required the lesser. जिसका एरिया कम होगा उसको बनाने के लिए lesser material चाहिए. ठीक है? So everyone, please go through all this full exercise. Tomorrow we will again continue with the same, right? And please do revise the questions, revise the formulas. Exams are approaching and exams are going to be conducted offline only. Don't keep any doubt in your mind, even 1% also कि शायद पेपर ऑनलाइन होंगे. पेपर 7 मार्च से शुरू हैं. We have lot of time, enough time, and the situation is going to get okay, right? तो पेपर ऑफलाइन ही होने हैं, ये हम आपको बता रहे हैं. किसी डाउट में मत रहना. स्टार्ट स्टडिंग. So see you tomorrow. Take care.